गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की नवसारी गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। આ માઇકમાં પ્રભુજી આ માઇકમાં પ્રભુ બોલે છે ત્યારે અવાજ ક્લિયર બધાને સંભળાય પાછા સુધી एकदम क्लियर અને અત્યારે મારો અવાજ થોડો જાડો આવે આનથી લઈ થોડા જાડા અવાજ આવે હરે કૃષ્ણ હા ક્લિયર છે તો આજે જે વક્તા છે પ્રભુજી તેમનો પરિચય કરાવી દઉં તમારામાંથી કોણ કોઈ જાણે છે એમને 1 2 3 4 5 5 6 જણા જાણે છે તો પ્રભુજીનું નામ છે આદ્ય પ્રભુ શું છે એ પરમ પૂજ્ય ભક્તિ વિકાસ મહારાજના શિષ્ય છે અને અત્યારે જે નંદગ્રામ ફાર્મ કોમ્યુનિટી છે જે વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે જ્યાં જીવન વ્યતીત કરવાનું લક્ષ્ય રાખીને આપણે કોમ્યુનિટી સ્થાપિત કરી છે તે કોમ્યુનિટીમાં એ ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી તરીકે રહે છે। તેમનો જન્મ રાંચી ઝારખંડમાં થયો હતો। ત્યાં તેમણે ભણાઈ પડતા 12 સુધી
સ્ટડી કરી અને પછી ઇન્ડોરમાં બીટેક કર્યું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનમાં. અને ત્યાર પછી તેઓ IBM કંપની, કોણ જાણે છે IBM? તો IBMમાં એમણે 3 વર્ષ નોકરી કરી. ત્યાર પછી ત્યાંથી તેઓ MBA કરવા IIT કાનપુરમાં ગયા. ત્યાં IIT કાનપુરમાં એમને શિક્ષાગુરુ મળ્યા. IITમાં કાનપુરમાં એમણે MBA ખતમ કર્યું. અને ત્યાર પછી તેઓ ઓરેકલમાં 2-3 વર્ષ જોબ કરી. અને ત્યાર પછી ડેલાઇટ નામની એક કન્સલ્ટન્સી કંપની છે, જે વર્લ્ડમાં 4th નંબર 1 ઓફ ધ 4 કંપનીમાંની એક કંપની છે, તેમાં એમણે જોબ કરી. અને ત્યાર પછી તેઓ કોઈ જોબ માટે હૈદરાબાદ આવ્યા. તો હૈદરાબાદમાં જે શિક્ષાગુરુ હતા તેમના કાનપુર IITમાં તેમના જ એક શિષ્ય ત્યાં આવ્યા અને એના કોન્ટેક્ટથી તેઓ ભક્તિમાં આવ્યા. અને ફૂલ ટાઈમ અત્યારે નંદગ્રામમાં સેવા આપી રહ્યા છે. આપણે આપણા છોકરાને ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એમણે જે ભણ્યા છે તેવા તો આપણા છોકરા ભણવાના નથી. અને એટલું ભણ્યા પછી બી ફાર્મમાં જવાનું હોય તો ભણાવવાનો શું મતલબ, હે ને? તો પ્રભુજી આજે એવું પ્રવચન આપશે કે આધુનિક, એટલું ભણ્યા પછી કહે છે કે આધુનિક શિક્ષણમાં શું ક્ષતિ છે અને વૈદિક ગુરુકુળમાં કેવા ફાયદાઓ હતા. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यहाँ से पढ़ाई, वहाँ से पढ़ाई. हाँ, તો અત્યારે નંદગ્રામમાં એક ગુરુકુળમાં શિક્ષક તરીકે સેવા આપે છે, આવા નાના છોકરાઓને ભણવાની. આ તેમનો એક સન છે, 2 સન છે આમાંના આવા. दूसरा कहाँ है? दूसरा तो छोटा है. તો આ એમનો સન છે, એ પણ ફૂલ ટાઈમ આટલું ભણ્યા પછી એના છોકરાને ત્યાં ફૂલ ટાઈમ ભણાવે. અને બીજા બી ગોપાલ ચૈતન્ય પ્રભુ છે IIT મુંબઈના, તે પણ ગુરુકુળમાં સ્ટુડન્ટ છે, ગુરુકુળમાં શિક્ષક છે. અને એ જ બધું જોવા માટે હું રામનવમીમાં તમને બધાને લઈ જવાનો હતો કે ત્યાં નંદગ્રામનું જીવન કેટલું સરળ છે. ખાલી 5 થી 6 કલાક પેટ ભરવા માટે કામ કરવાનું, બાકીના સમય ભક્તિ, હે ને? અને બધાનો એકબીજાને સહકાર, એવું નિર્મળ જીવન જે પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે અને પરમ પૂજ્ય ભક્તિ વિકાસ મહારાજની કૃપાથી આપણે સ્થાપિત કરી શક્યા છીએ. તો એવું જીવન જીવવા અને આમાં અડધાએ તો IBMનું નામ નહીં સાંભળ્યું હશે, ઓરેકલનું નામ નહીં સાંભળ્યું હશે, ડેલાઇટનું નામ નહીં સાંભળ્યું હશે. એવી મોટી કંપનીમાં જોબ કરી ચૂક્યા અને છેલ્લે રિયલાઇઝ થયું કે નહીં, આ બધું નકામું છે, આ સાચું છે. તો આપણે એટલો બધો ચક્કર કાપવાનો મતલબ કોઈ, હે ને? રોમહર્ષ ઋષિ હતા, ખબર છે ને બધાને? પોતાનું ઘર જ નહીં બાંધતા હતા. हरे कृष्ण. हरिदास वगैरह कहाँ है? बुला लो. भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, वो मुझे याद आ रहा था जब प्रभु इतना बता रहे थे, यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा. और अंततः भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, वो विद्यारा विलासे काटाईनु काल परम साहसे आमी. मतलब विद्या को अर्जन करने में पूरा मैंने जीवन लगा दिया, बहुत ब्रेवरी के साथ, आई एम दिस आई एम दैट, और पूरा उस उपाधि को लेकर. आगे भजन में बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जड़ विद्या जतो माया रेरा वैभव, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कौरे गाधा. गाधा मतलब गधा ही होता है, बंगाली में गाधा बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड डोंकी. क्योंकि जब शिला प्रभुपाद की कृपा से इस आंदोलन में जुड़ा तो समझ में आया कि वास्तविकता में नॉलेज होता क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज, क्या है ज्ञान. संस्कृत में ज्ञान विद धातु से आता है, जिससे वेद आए हैं. सारा ज्ञान जो है वेद में है.
कई बार हमें लगता है कि इररिलेवेंट बात है ये, वेद से सारा ज्ञान आया है, लेकिन केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, सब कुछ जो भी जानने योग्य है वो वेद से आया ही। जो अवैदिक है, यानी कि जो भी मॉडर्न है, जो भी नॉन वैदिक है, वो यूजलेस है। हम देखेंगे कुछ इस प्रेजेंटेशन में। आज किसी श्लोक को लेकर यहाँ पर कथा नहीं होगी, क्योंकि एक मुख्य ध्येय है कि हम गुरुकुल के बारे में, आप लोग कुछ ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ और हम चर्चा करेंगे। भगवान भगवद गीता में 7वें अध्याय में बताते हैं दूसरे ही श्लोक में कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ये जो ज्ञान है जो तुम्हें मैं देने जा रहा हूँ, वो ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान नॉलेज होता है और विज्ञान उसका एप्लीकेशन होता है। तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अच्छे से बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ, सब कुछ बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, भगवान बोलते हैं कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। क्या है वो ज्ञान? उस ज्ञान में भगवान केवल आध्यात्मिक विद्या नहीं, भौतिक विद्या भी बताते हैं, भौतिकता भी, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है ना, जो हम जानते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, प्रभवो बोलते हैं लेकिन विसर्ग के चलते ओकार आ जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आगे क्या है? जोर से बोलिए। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो सब कुछ भगवान से ही आता है, सारा ज्ञान जो है वह भगवान से आता है। भगवान परमात्मा है, परमात्मा, उनसे सारा ज्ञान आता है। अभी जय गोविंद प्रभु बता रहे थे कि उनकी गौशाला है और किस प्रकार से गौ सेवा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रेरणा दे रहे थे कि कैसे हम नंदग्राम में भी और सुधार ला सकते हैं। जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होती है ना, बछड़ी बाछी बछड़ा, ये सब जब होता है, जन्म होने के बाद वो स्वतः खड़ा हो जाता है और वो अपने माता का दुग्ध लेने लगता है। कौन देता है उसको ये ज्ञान? क्योंकि ये सोचने की बात है ना, एक बछड़ा खड़ा हो जाता है और उसको पता है कहाँ जाना है उसके भोजन को लेने के लिए, उसका प्रसाद कहाँ है। हाँ तो परमात्मा जो है भगवान हृदय में है सबके, और वही परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। और वही परमात्मा बताते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चा अहम। सर्वस्य चाहम, पहला लाइन क्या है? बोलिए, ऊंचा बोलिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हाँ, सबके हृदय में मैं व्याप्त हूँ परमात्मा के रूप में। तो ये जो परमात्मा के रूप में है, सबका चुग्गा, चिड़िया का चुग्गा होता है ना, उसकी चोंच में माता के खिलाती है, चुई 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 चुई, ये सब नंदग्राम में देखने के लिए मिलता है। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, समीप रहते हैं, उतना प्रकृति के स्वामी जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको समझना सरल होता है। हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हमें आ गया है समझ में, लेकिन प्रकृति को देखने से हमें समझ में आता है कि हम कितने निम्न हैं। और शहरी वातावरण में, इस प्लास्टिक वर्ल्ड में, जहाँ एक ये टिपने से ये ऑन हो जाता है और सब कुछ चकाचौंध हो जाता है, यहाँ ये समझना संभव तो है क्योंकि भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन अधिक कठिन है।
और जितना प्रकृति के नज़दीक रहते हैं देखते हैं कि एक बीज डालने से जो अंकुर होता है धीरे धीरे, हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक बीज डाल रहे हैं और उसको सिंचन करते हैं। बारिश में तो सिंचन भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा होता है। तो इसी परमात्मा को जानना बहुत मुख्य ध्येय है हमारे सबके जीवन में। आप सबके जीवन में जो भी यहाँ पे दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे केंद्र में है। अगर केंद्र बढ़ेगा, केंद्र का मतलब अंग्रेजी में सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर। और सेंटर किसका, मान लीजिए कोई सर्कल है, भगवान की हम परिक्रमा करते हैं ना, तो जब परिक्रमा करते हैं तो उसका एक मुख्य, वो तो एक रिचुअल है, लेकिन उसके पीछे की स्पिरिट अगर हम जानेंगे तो स्पिरिट और रिचुअल मिलकर स्पिरिचुअल हो जाता है, राइट। तो जो परिक्रमा करते हैं तो वो जो गोल घेरा बनाते हैं भगवान की तरफ, हाँ, तो उससे ये भावना रहती है कि भगवान आप हमारे जीवन के केंद्र हैं। जब भी आपने कभी देखा होगा कि बच्चों ने कभी तालाब में या कुएं में वो पानी में मारा है, पत्थर मारा है, हाँ, क्या होता है, तरंगे फैलने लगती है ना। सारे वो उसको क्या बोलते हैं, जो एक रेडियस 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कोई आपस में देखा है कभी आपस में वो भिड़ते हैं? नहीं ना, नहीं भिड़ते ना। एक पत्थर मारो तो कुछ नहीं भिड़ेगा, लेकिन क्योंकि केंद्र एक है। जब 2-3 पत्थर मारेंगे तो आप देखेंगे तहस नहस होने लगता है। हमारे जीवन में भी जब हमारे केंद्र बहुत हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं, तो भिड़ंत होने लगती है। सारे संबंधों में भी ऐसा ही है, हाँ। इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण अगर केंद्र में रहेंगे तो उथल पुथल नहीं होगी। और वैदिक शिक्षा का, क्योंकि वैदिक शिक्षा है, वेद से आया है, और वेद को जानना मुख्य सार है, कृष्ण को जानना। तो ऐसे वैदिक शिक्षा का मुख्य एम जो है, मुख्य ध्येय जो है, वो कृष्ण को जानना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भौतिकता में हम बिल्कुल जाते ही नहीं, वो भी रहता है। और जो आज आधुनिक शिक्षा हो गई है उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। वो वास्तव में एक कमोडिटी बन गई है। जिस प्रकार से हम सेब बेचते हैं, कुछ अन्य कुछ बेचते हैं, ये डीमार्ट है यहाँ पे देखिए सामने, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। ये एजुकेशन भी एक कमोडिटी हो गया है, लोग बेचने में लगे हैं। ये यूनिवर्सिटी है, आ जाओ, कौन एडमिशन लेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ले सकता है। ज़्यादा हायर इंस्टीट्यूट में है, उसमें आप पेड सीट्स रहते हैं ना, ऐसा होता है ना, पेड सीट्स जानते हैं आप लोग। तो पेड सीट्स में जैसे रिलायंस का कोई अंबानी का कोई बच्चा है तो वो जाके सीधा हार्वर्ड में पढ़ सकता है। पढ़ते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि वो लोगों को स्कोर करते हैं इसलिए पढ़ते हैं, बिकॉज दे कैन पे, तो वो पढ़ सकते हैं, स्पेशल सीट्स रहती हैं उनके। तो इस प्रकार से ये एजुकेशन पेड एजुकेशन है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो भी शूद्र ही है, क्योंकि पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे, हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत मुख्य उसकी भूमिका है। वो हमारे सबका गृहस्थ जीवन में, बाकी तो उथल पुथल आप जानते हैं, मैं भी स्वयं गृहस्थ हूँ, तो आपस में तो बहुत रहती है समस्याएं, लेकिन अगर एक सुख है जीवन में तो वो बच्चा रहता है, जब तक वो छोटा होता है। तो छोटे में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यही जब बड़े हो जाते हैं और अगर संस्कार विहीन हो गए तो बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पे बहुत वरिष्ठ भी बैठे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे वो जवाब उत्तर नहीं देते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये मॉडर्न एजुकेशन में ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। उनको विद्या का मतलब इन्फॉर्मेशन का पहाड़ बनाना है, इन्फॉर्मेशन का पहाड़। आप देखेंगे मैं बहुत सारे क्विज़ेस में भी पार्टिसिपेट करता था, बहुत टाइम बिगाड़ा है मैंने। बिगाड़ा है इसलिए क्योंकि मुझे आज लगता है कि उस एजुकेशन का क्या, उसका क्या अर्थ क्या था। जैसे बिजनेस क्विज़ेस में बहुत पार्टिसिपेट करता था मैं, किसने ये बनाया, किसने वो बनाया। HMV का एक लोगो है, तो उस लोगो के पीछे एक ग्रामोफोन होता था और एक कुत्ता होता था, उस कुत्ता का नाम स्नाइपर था। ऐसे बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में भरी पड़ी है। हाँ, और
इस इन्फॉर्मेशन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो मैं बहुत दिन रात लगा रहता था, दिन रात लगा रहता था मैं, लेकिन जीवन में कोई चरित्र में कोई परिवर्तन, जीवन में कोई ध्येय इससे मिल नहीं पाता है। वैदिक जो शिक्षा है उसका मुख्य हेतु है कि आपके जीवन को एक ध्येय देना, बताना कि जाना है कहीं पे। छोटे से उदाहरण से चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा। हर चीज़ का ध्येय है, हर कुछ चीज़ का एक पर्पस है। इस मनुष्य जीवन का भी एक बहुत विशेष पर्पस है। जैसे एक कार है, छोटी कार है, ऑल्टो है, या कोई टू व्हीलर है, एक्टिवा है, और दूसरा एक प्लेन है। दोनों का अलग अलग पर्पस है ना। प्लेन बना है उड़ने के लिए, उड़कर हम इस देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। अगर कोई पायलट एयरपोर्ट पे लैंड करे और बोले कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जरा डीमार्ट जाना चाहता हूँ, तो बोले भाई ये करोड़ों की प्लेन है, तुम इसको लेके उधर नहीं जा सकते हो, उसके लिए तो तुम्हारे दूसरा व्हीकल है, दूसरा यंत्र है। हाँ, तो उसको बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और बहुत इंसिस्ट भी करेगा तो उसको कुछ एक्टिवा या वो दे देंगे, बोलेंगे जाओ तुम लेकर जाओ, अभी डीमार्ट घूम के आओ। प्लेन से डीमार्ट कोई नहीं जाता है, ये उड़ने के लिए बना है। मनुष्य जीवन भी उड़ने के लिए बना है। यहाँ से वैकुंठ जाने के लिए बना है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं है, वहाँ जो वैकुंठ है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, नो मिजरीज। हम कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम भी डीमार्ट प्लेन से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो व्हीकल जो ये मनुष्य शरीर है, हो सकता है हमसे ले लिया जाए और एक टू व्हीलर दे दिया जाए। हाँ, तो मुख्य बात वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ये है, क्योंकि यहाँ पर एक आरंभ से स्टूडेंट को, और स्टूडेंट नहीं, वहाँ शिष्य होते हैं। स्कूल में स्टूडेंट होते हैं और गुरुकुल में शिष्य होते हैं। शिष्य का अर्थ है कि जो शासित होना चाहता है, जो शासन सह सकता है, वन हु इज़ रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड, उसको शिष्य कहते हैं। क्योंकि गुरु बताएंगे कि किस प्रकार से बैठना है, अभी उठना है, अभी खड़ा होना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो वो बताएंगे। मैं एक स्लाइड भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी दिनचर्या रहती है गुरुकुल की, कि हर समय क्या करना है निश्चित होता है। तो ऐसे शिक्षण में, ऐसे ताड़न में, ऐसे रेगुलेशन में जब रहता है व्यक्ति, जैसे आप आर्मी के किसी व्यक्ति को देखिए, वो बिल्कुल कसा हुआ है, तो यहाँ पे भी वो आर्मी ऐसी ट्रेनिंग माइंड की हो रही है, मन को निग्रह कर रहे हैं, निग्रह, बार बार अभी ये करना है, अभी ये करना है। क्योंकि वास्तव में क्या होता है, जब गुरु नहीं होते हैं तो मन हमारा गुरु हो जाता है। वी डू व्हाट द माइंड सेज। तो ये जो शिक्षा है, इसमें सबसे पहले तो विनय सिखाया जाता है। विद्या ददाति विनयम, और विनयात याति पात्रताम। विनय से पात्रता आती है। पात्र मतलब वेसल। आप वेसल बनेंगे, कोई बर्तन बनेंगे, तभी तो आप में कुछ डालेगा। क्योंकि ज्ञान जो है वो कमोडिटी नहीं है, ये जल है। जल जैसे ऊपर से नीचे आता है, ज्ञान ऊपर से नीचे आता है। और ज्ञान आप जिस प्रकार से हिमालय से गंगोत्री से गंगा नदी बहती है, हम किसी पात्र में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान भी ऊपर से नीचे आता है। इसीलिए जो शिष्य है वो गुरु की शुश्रूषा करके, उनकी सेवा करके, विनय प्राप्त करके इस ज्ञान को लेता है, पात्र बनता है। ये नहीं है कि इंटरनेट पर बैठ गए हैं और एक हाथ से सैंडविच खा रहे हैं और एक हाथ से कोका कोला पी रहे हैं और उसके बाद भगवत गीता का कुछ सुन रहे हैं, उससे ज्ञान नहीं आ पाएगा। भगवत गीता भी सुन रहे हैं तो नहीं आ पाएगा, कठिन है। क्योंकि ये एक रिलेशन है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरी। तभी तो भगवान बताते हैं तद विद्धि
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवया सेवा के द्वारा, हाँ, प्रश्नों के द्वारा, लेकिन पहले शुश्रूषा के द्वारा। तो ये है वैदिक सिस्टम, जिसमें इस प्रकार से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक मॉडर्न एजुकेशन का आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ, आपको एक झलक देना चाहता हूँ। आप जानते हैं फिर भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, और ऐसी बिल्डिंग्स में क्या पढ़ाया जाता है? गणित, भाषा। हम गुरुकुल में वही पढ़ते हैं, भाषा और गणित का ज्ञान जो भी हमें आता है। अच्छा, ये हो सकता है हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं, लेकिन पक्का पढ़ाते हैं। देखिए, हम ऑक्टामीटर, नॉनामीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर, हेक्टामीटर, हेप्टामीटर नहीं पढ़ाते हैं, हाँ, डेसीग्राम नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पूछेंगे, उनका समय हो गया सोने का, क्योंकि 8:30 बजे सोने का समय है, इसलिए वो चले गए हैं लगता है। दे कुड हैव स्टेड, लेकिन आदत है उनको, 8:30 बजे सोते हैं, फिर 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो अभी देखिए, उनको ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान नहीं देता है। जैसे उनको मिलीलीटर पढ़ाता हूँ, तो कैसे बनाता हूँ? पैरासीटामोल की एक बॉटल ले आता हूँ। देख, तो ये पैरासीटामोल की जो बॉटल है, जो बेबी पैरासीटामोल होता है ना, उसमें बताता हूँ ये 100 ml है। तो उनको 100 ml का पूरा ज्ञान आ जाता है। ये 100 ml है, 1 लीटर का बॉटल है, तो ये एक, इसको 10 टाइम्स करोगे तो 100 ml होगा। ml बताएंगे, लीटर बताएंगे, किलोग्राम बताएंगे, ग्राम बताएंगे, और बटखरा सारा बाट, उसको क्या बोलेंगे प्रभु जी? बाट ही बोलते हैं, जो बटखरा होता है, तराजू, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल नहीं है, तो सारे बाट देते हैं कि देखो ये 100 ग्राम का, ये 250 ग्राम, ताकि उनके दिमाग में ये सेट हो जाए। और फिर हम क्या करते हैं कि सब्जी बेचते हैं। चलो सब्जी, अब सब्जी बेचना है तुमको, तो वो 250 ग्राम और इधर से ऐसा आलू को इधर करेगा, उसको सेट हो जाता है। अब देखिए, हमारे एक कक्षा में 8 ही बच्चे रहते हैं, 8 से 9, 10। इनके साथ ये कर पाना सरल होता है। नकली नोट है, वो नोट देता हूँ और बोलता हूँ कि चलो अब इतना खरीदा तो कितना होगा, तो दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, और उससे उनको व्यावहारिक ज्ञान आता है। गणित इस प्रकार से पढ़ाते हैं। और अगेन, हम वो सब नहीं पढ़ाते हैं, डेकामीटर है, जैसे मैंने कहा, वो सब की, उन सब की आवश्यकता नहीं है। तो अब कहाँ पढ़ाते हैं? डिपेंड करता है। अगर मुझे एकड़ के बारे में, हेक्टेयर के बारे में, स्क्वायर फीट के बारे में बताना है, तो मैं उनको खेतों में ले जाता हूँ। हाँ, स्क्वायर फीट पे कैसे बताते हैं बलराम? स्क्वायर फीट पढ़ाया था ना, ये टाइल्स को देख के कुछ याद आया क्या बताते थे? तो टाइल्स को देख के बोलते हैं चलो अब नापो इसको। देखो, ये स्क्वायर है, ये लगभग 3-4, ये 3 लग रहा है, ये 4 बाय 4 है, 4 बाय 4। अच्छा, उधर वाला दिख नहीं रहा, 4 बाय 4 के आसपास है। तो ये अंदाज हो जाता है। ये अंदाज जो है, ये अनुमान लगाना, अनुमान प्रमाण भी एक तरीके से वो है, ये सब उनको सेट होता है। मैं ऐसे पढ़ाने के बाद, मेरी जो वाइफ है वो L&T मैसूर में फर्मवेयर इंजीनियर थी, रोम में प्रोग्रामिंग करती थी। रोम मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर जो चिप होता है ना, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग करती थी, या ऐसे कुछ। उससे मैंने पूछा, इंच और सेंटीमीटर में क्या होता है रिलेशन? इंजीनियर है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो भूल चुकी है कि इतना जो पाइप है वो लगभग 25 mm का होता है। अब हमें याद है क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस प्रकार से गणित पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी आर डूइंग थिंग्स ट्राइंग टू बी एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। ठीक है, बोलने का मतलब है, मैंने किसी बच्चे से पूछा, बड़ौदा में भी थे, तो थोड़े से, कितने तुम्हारी स्कूल में कितनी बसेज हैं? तो बोला प्रभु जी 50। 50 बसेज हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, क्या पढ़ाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करके क्या पढ़ाते हैं? यही गणित जो हम कभी किचन में, कभी खेत में, कभी पेड़ के नीचे कई बार क्लासेस लेते हैं। ऐसे जो ये पेड़ दिखा रहे हैं ना, हम पेड़ के नीचे लिटरली क्लासेस रहते हैं। और पूरी देखिए, ये जब बंद हो जाएगा तो पता नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो ऐसे ही खुली खुली हवा ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक यूज टू होना होता है, प्रैक्टिकल। पेड़ को अगर बच्चा देखेगा ना तो समझ जाएगा कि भगवान है। प्लास्टिक वर्ल्ड में उसको समझ में नहीं आएगा। खाना बना के देती है माता, जब रोटी देती है प्लेट में या कुछ भी देती है, हाँ, जब वो उसको बना के देती है, जब वो खाता है गरम गरम, तो उसको समझ में आता है ये मेरी माता है, संबंध बनता है। अभी ये वो कोई आप टीपेंगे और वो आ जाएगा, वो क्या ब्लिंकिट, किस में जाता है खाना? स्विगी में आता है शायद ना, हाँ स्विगी में, यहाँ पे भी है वो सब, तो उसमें आ जाएगा खाना।
ये सब विदेशों में हो रहा है, ये सब विदेशों में हो रहा है। मैं कुछ समय के लिए था लंदन में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं कोई। मतलब आप जब घर खरीदते हैं तो वो पूछते हैं आपको किचन चाहिए, तो किचन चाहिए तो मतलब खाएंगे कहाँ, टॉयलेट में कहाँ बनाएंगे? ये किचन चाहिए इसका क्या मतलब है? प्रभु जी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किचन चाहिए कि नहीं चाहिए वो पूछते हैं। हाँ, तो मैं पहली बार गया तो मुझे पता नहीं था, ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। तो रात में पहुंचा था तो मैंने पूछा कि रिसेप्शन में कॉल करके कि मुझे पीने का पानी चाहिए। तो बोली कि द टैप इज देयर। मैंने ढूंढा टैप, मिला ही नहीं। फिर कॉल किया तो बोली टैप इज देयर, टेक वाटर। वो ऐसा, उसको ऐसा लगा ये इंडियंस ऐसे ही हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि टैप से पानी जो पीने वाला होता है। तो बोली इट्स पैलेटेबल, पीने का है। मैंने ढूंढा, मिला ही नहीं। फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो बोली वॉशरूम में जो पानी है वो वहाँ टैप नहीं है। मैंने सोचा जहाँ टॉयलेट है, जहाँ हाथ धोते हैं, उसका पानी वो पीने बोल रही है। हाँ, और उसी को हम कॉपी कर रहे हैं। तो मतलब मैं बता रहा हूँ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिक्स जो है वो सब भी मिसिंग है। हाँ, क्योंकि जीवन का कुछ ध्येय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। हाँ, तो ये सब बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गणित पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाना है, किसके लिए बड़ी बिल्डिंग क्या चाहिए? अभी इनको आरंभ कर सकते हैं। अभी 5 मिनट मिलेगा तो मैं इनको थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाने की आदत है। ऐसी शिक्षा का मतलब नहीं है। आप इंटरनेशनल स्कूल के 2 बच्चे हमारे पास कम से कम है। एक आयुष है, रेडक्लिफ से आया है, और एक भोपाल से ऑस्ट्रिच या ऐसा कुछ इंटरनेशनल स्कूल था। वो बच्चे जब हमारे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये वो अंग्रेजी में 2 1 2 या 17 1 17 17 2 ऐसा करते हैं। ये 17 का 17 17 दूनी 34। मैं भी अंग्रेजी में ही पढ़ा हूँ, इनको हिंदी में पढ़ाता हूँ। 17 3 51 पूरा 17 का टेबल पूरा जानते हैं। तो अभी रटन की जो विद्या है, और एक बात, टेबल अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, टेबल मतलब पहाड़े, है ना, तो पहाड़े अगर हम अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैलकुलेशन भी इट विल बी ऑन फिंगर टिप्स। बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान है। जो भी हैं उनको अगर नहीं भी गणित करते हैं तो पुराना बहुत याद होता है। दूसरी एक समस्या जो पढ़ रहे हैं बच्चे, हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों को माताएं ये ज़्यादा अनुभव करती होंगी कि लगभग 11 साल 12 साल जो भी हो गए हैं बच्चे। आप बताइए क्या सरल है बच्चों को डिसिप्लिन कर पाना घर में? नहीं सुनते ना बात। हाँ, वो बात नहीं सुन पाते हैं। तो जिस प्रकार से गुरु एक बच्चे को ट्रेन कर सकता है ना, माता पिता कर नहीं पाएंगे, ट्रेन नहीं कर पाते हैं ट्रेन। ये एक रियलिटी है जो चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इस बात से को समझें। फिर क्या है कि देखिए, माता पिता और एक बच्चा या 2 बच्चा, पूरे जीवन का केंद्र वही रहता है। हाँ, आपस में तो कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन बच्चा ही रहता है। पिताजी को बोल दो खाना वहाँ पे है। हाँ, ये सब चलता है ना घर में, सब कॉमन बात है। तो बच्चा ही केंद्र पे है, तो आप उसके ऊपर कितना शासन कर सकते हैं। लेकिन चाणक्य पंडित या वेद, जो भी परंपरा में हम देखते हैं कि बच्चों का ताड़न होना चाहिए, जन्म लेते ही तड़ देने लगे, ऐसा नहीं। 5 वर्षानी तू लालयेत, 5 वर्ष तक उसका लालन करो, पैम्पर करो, अच्छे से खिलाओ, खूब सारा खिलाना चाहिए। 5 वर्षानी। 10 वर्षानी तू ताड़येत, 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षानी, 16 वर्ष का जब हो गया, तस्मात् तुम तु शिष्यम च पुत्रम च लाल मित्रवत आचरेत, मित्रवत आचरण करना चाहिए। उस समय लालन ताड़न दोनों नहीं होना चाहिए, मित्रवत। मित्र वो बोलते भी है, कॉमन विजडम है कि बच्चे का जो पैर का जूता ऐसा है ना कुछ, कि पैर का जूता अगर आने लगा उसके हाथ में पिताजी के जैसा, पिताजी का पहन के चलने लगा, तो समझ जाओ भाई अब बड़ा हो गया है, अब ज़्यादा बोलोगे प्रति उत्तर आएगा, कठिनाई। हाँ, तो क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। ये 10 वर्ष में, इस 10 वर्ष में 5 से लेकर 15 16 तक आप उसको नियमित कीजिए।
ठीक है, ये शास्त्रों की शिक्षा है। अब ये मॉडर्न स्कूल में आपको पता है क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये सब पे भी थोड़ा पर देखते रहते हैं, तो वो ये बता रहे हैं नहीं, लेट देम बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बनने दो। एकदम गलत बात है, वाहियात बात है, ये वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, इससे हमारी दुर्गति होगी ही। बचपन में बहुत झापड़ खाए हैं, इसीलिए अभी भी तक माता पिता का है सम्मान। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को बहुत स्नेह करेंगे तो ये भी हमारे हमेशा हमसे ऐसे ही मित्र होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे भुलावे में मत रहिए, अपवाद एक आध हो जाए तो अलग बात है। वो कोई भी पुत्र है आपका, जैसे ही विवाह होगा सबसे पहले तो माताएं रोना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो माता 25 वर्ष तक उसको लगता था कि मेरी माँ से अच्छा कोई है ही नहीं, ना मेरी माँ से अच्छा कोई खाना बनाता है, ना मेरी माँ से अच्छा कोई वो है। अगर कोई सेकंड बेस्ट है भी तो पिताजी सेकंड बेस्ट है, वो माता मेरी बेस्ट है। उसके बाद जब वो आती है तो वो बताती है, अरे तुम्हारी बात तो ऐसी है। हाँ अच्छा, वो पहली बार में तो विश्वास भी नहीं करते। हाँ, दूसरी बार, तीसरी बार, बाय द टाइम ही गेट्स 26, 27, 2-3 वर्ष हो गए विवाह का, अरे भाई मेरे तो माता को मैं क्या समझता था, तो ऐसा करती है। एंड दिस इज़ द रियलिटी विच वी आर फेसिंग, है ना। और इसके कारण से लैक ऑफ ट्रेनिंग से दुर्दशा हो रही है। हमारे जनरेशन में ये समस्या हो रही है कि हम अपने माता पिता के साथ यानी कि माता को सास ससुर के साथ रहने में कठिनाई हो रही है, और बच्चे ये नहीं देख पा रहे हैं, और इससे बहुत भयंकर होने वाला है। ये तो हमने तो कुछ देखा भी है, हमने तो अपने दादा दादी को अपने घर में देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो अभी के जनरेशन के बच्चे जो नहीं देख रहे हैं, आगे भविष्य हम अपना खराब कर रहे हैं। ये मत सोचिए ज़्यादा चुंबन से वो चिपके रहेंगे, नहीं। जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है जीवन में, तो उसके 1-2 ही साल में बहुत कठिनाई हो जाएगी, और आप लोगों को झेलना पड़ेगा ये। इसीलिए धर्म की शिक्षा दीजिए। कर्तव्य क्या है बताइए, क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, और ये सब शिक्षा स्कूलों में नहीं दे रहे हैं। देखिए गुरुकुल में बाकी तो जो है वो है, लेकिन कम से कम इतने साल तक वो जब रहता है तो गुरुकुल में उसको असत संग, अधार्मिक संग नहीं मिलता है। जितने भी साल, मान लीजिए 5 वर्ष, 10 वर्ष, जितने भी साल रहा, अधार्मिक संग उसको नहीं मिलेगा। ना वो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ना वो ये सब कुछ देख सकता है, क्योंकि है ही नहीं। मेरे पास इतना छोटा सा है, वो भी जब शहर आते हैं तब लेकर आते हैं। वो भी जय गोविंद प्रभु 2-4 बार कॉल करते तो समझ में भी नहीं आता है कि भाई आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये आईटेल का है। असल में ये प्रवचन सुनने के लिए, फिर आने के समय अपना सिम डाल लेते हैं इसमें, किसी तरीके से। वो छोटा सिम है और इसका स्लॉट बड़ा है, तो किसी तरीके से उसको मैच कराते हैं। तो ये सारी समस्याएं। मुख्य बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, इनको अधार्मिक संग गुरुकुल में बिल्कुल नहीं मिलता है, एकदम असत्संग कट जाता है, और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन, ये मोबाइल। और अभी अब देखिए बच्चों के अंदर एक और क्या है, एक टाइम बॉम्ब भी है उनके अंदर, जिसको टेस्टेरोन बोलते हैं केमिकल भाषा में, केमिस्ट्री में। टेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, दे बिकम वेरी एक्टिव व्हेन किशोर अवस्था में। साधारण सी बात है, आज नहीं, ब्रह्मा जी जब से कमल पर विराजमान है तब से ये समस्या है। ये तो काम भावना होती है जनित, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और अग्नि है और उसमें घी डालो, लो पेट्रोल डाल दो, गैस डाल दो, सब और भड़ाका कर रहे हैं। तो साथ में स्त्री और पुरुष में इतना आपस में एक ही जगह पे वो इतना है कि उसके चलते बहुत ही समस्या हो रही है। तो ये जो है, इसके चलते जो समस्या है वो शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध शिक्षा है। ये को एजुकेशन है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप समझ गए, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं, तो इशारा कर रहा हूँ बस। डिटेल्स में तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं, बहुत समस्या है। निग्रह करना आवश्यक है। अगर नियमन करते हैं, मन को बताते हैं ये करना है तो वो करना है, तो धीरे धीरे नियमित करने से कुछ वर्षों में ये नियमित हो जाता है। और अगर असत्संग नहीं है तो कम प्रभाव पड़ता है, ऐसा हम बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं, जो भी भक्तगण है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्त बने, कृष्ण भावनामृत को
अंगीकार करें, उसको जीवन में गंभीरता से लें। लेकिन इनके बारे में भी सोचिए, इनका जीवन किस प्रकार से हो जाता है कि उनको लगता है कि भाई संडे या मंडे है तो वो धोती पहनना उस दिन, बाकी दिन हाफ पैंट, जीन्स, ट्राउज़र, बर्मुडा, अलग अलग प्रकार के ड्रेस हैं। और फिर उनसे स्कूल में कोई पूछता है कि हाँ किसने किया क्रिएशन, तो बोलता है बिग बैंग से हुआ है क्रिएशन। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने किया है विसर्ग, ब्रह्मा जी। तो बोलते अच्छा, तो सोचता रहता है अच्छा संडे को ये बोलना है और मंडे को। कभी अगर स्कूल में बोल दिया कि टीचर ने पूछा हाँ कैसे हुआ कॉस्मिक क्रिएशन, कैसे हुआ प्रभु जी, ओ बोले ब्रह्मा जी ने किया, जब बैठो ब्रह्मा जी ने किया, यही सब पढ़ के आ जाते हो उटपटांग माइथोलॉजी। अब बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है ये क्या है। धीरे धीरे वो अपने आप को सेट करता है, उसके माइंड को थोड़ा वो समझाता है। अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं केवल उससे नहीं सीखते, हम क्या करते हैं उससे सीखते हैं। तो समझ जाता है अच्छा मतलब संडे को ये बोलना है और मंडे को बाकी वीकडेज में बिग बैंग, तो संडे में ब्रह्मा जी चलेंगे, हाँ ओके ठीक है। और हम कैसे आए, हम मंकीज़। और जैसे ही कोई धोती कुर्ता वाले प्रभु जी पूछे मनु महाराज, हाँ ये ठीक है। इस प्रकार से वो अपने माइंड को सेट कर लेता है। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, उनके मन में द्वंद्व क्रिएट कर रहे हैं, डुअलिटी। उसको दो प्रकार का, एक ही जीवन तो कठिन है कलयुग में, दो प्रकार का जीवन दे रहे हैं। एक जीवन है उसका धोती वाला, धोती लाइफ, और दूसरा है जीन्स लाइफ। वो इससे मैच करता करता कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है अच्छा वो देसाई जी वाले तो ये बोले थे वो, और जो हाँ पटेल जी के लड़के तो ऐसे कहते हैं, और ये अलग है। उनको समझ में नहीं आता है क्या पिताजी ऐसा बोलते हैं, बाकी मेरे मित्र, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो पीयर से भी सीखते हैं, अपने मित्रों से बहुत अच्छा सीखते हैं। तो ये एक मैं माता पिताओं को, अभिभावकों को भी ये थोड़ा आपसे अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर हमारे साथ रहें। तय मानिए कि अगर ये बच्चे को हमने धर्म की शिक्षा, धर्म परायण नहीं बनाया, इनको ये नहीं बताया कि माता पिता देवतुल्य हैं, गुरु देवतुल्य हैं, हमें कितना भी इन्हें स्नेह करें ये हमें नहीं त्याग देंगे। ये बहुत ही क्रूअल रियलिटी है। शायद कम लोग ये सब बात बताते हैं, लेकिन अगर आपका विरोध है तो आप बोल सकते हैं कुछ कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम भुलावे में, हो सकता है एक आध कोई अपवाद आ जाए। ये सब जो माता पिता को घर में रखना, ये सब एंटिटीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो रही, लुप्त प्रजातियाँ बनने वाली। गुरुकुल की शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक राउंड द क्लॉक ये बताना चाहता हूँ कि राउंड द क्लॉक हम करते क्या हैं, होता क्या है गुरुकुल में। देखिए 8:30 से तो 3:45 बजे तक सोते हैं ये। उसके बाद उठते के साथ ही मंगल आरती के लिए तैयारी करते हैं। उसमें शौच, स्नान करना, शौच, दंत धावन दातून से करना, हाँ, और दीपक जला के वो सब करना, प्रिपरेट करते हैं। कभी कभी 3-4 माला भी कर लेते हैं। 4:30 से मंगल आरती होती है, 5:10 तक मंगल आरती चलती है। 5:10 से 5:30 टेम्पल क्लीनिंग करते हैं और कुछ अस्थि व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम, 8-10 सूर्य नमस्कार कर लिया, इस प्रकार से। बस देखते जाइए लगातार, किसी में भी आपको गैप नहीं दिखेगा। ये बच्चे यहीं पे बैठे हैं, फिर क्या करते हो 6:10, 6:15 से क्या करते हो, 6:15 तक क्या करते हो, ऊंचा बोलो, माला करते हो, हरि नाम करते हैं। उसके बाद क्या करते हो, पारायण, श्लोक पाठ करते हैं। हाँ, तो वो श्लोकों को उच्चारण के साथ, प्राणवायु के साथ लगभग 45 मिनट तक संस्कृत के श्लोकों को, इन श्लोकों को पाठ करने से प्राणायाम भी होता है और ध्वनि, वोकल कॉर्ड हमारे स्ट्रांग बनते हैं। और केवल स्मरण की बात नहीं है, वो अच्छे से इसको दोहराने से मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति बहुत बढ़ती है। ये साधारण श्लोक तो है नहीं, भगवद गीता तो भगवान की उपासना ही, तो उसको एक अच्छे तरीके से, जैसे बच्चे अगर 10वें अध्याय का ही आज पारायण कर रहे थे, पूरा 7वां अध्याय, 10वां अध्याय, इस प्रकार से इनको रटन है। जो कम उम्र की इन, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ध्रुव, हाँ ध्रुव, और सव्य भी है ना, सव्य बोले पीछे, हाँ। तो ऐसे उम्र के बच्चे को ज़्यादा
पूरा ABCD घिसवाना नहीं चाहिए। इनका समय अभी बस रटन का है। पहले तो खेलने देना चाहिए 5 वर्ष तक, और उसके बाद रटन रटन रटन। अगले 4-5 साल में इनको पूरी भागवत, पूरी चैतन्य चरितामृत, सारे पहाड़े, सारे आयुर्वेद के सूत्र, ऐसी बहुत सारी चीज़ अगर आप इनको इतनी मोटी मोटी पोथी दे देना, सब रट जाएंगे। लेकिन रटाने का तरीका है, वो तरीका जैसे परंपरा में चला रहा है उसी प्रकार से हम पालन करते हैं। अभी मैं बोलूँगा कुछ एक श्लोक बोलने के लिए, तो आ जाओ बलराम, इधर आओ, चलो। ओ बलराम, अनंत भी है, छोटा बच्चा, वो चला गया, अच्छा उधर हो, ठीक है। 7वें अध्याय का पहला श्लोक बोलो, 7वें अध्याय का पहला श्लोक बोलो, तुम ही बोलो, छोटे ही बच्चा बोलो, इधर आओ। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहला श्लोक बोलो भगवद गीता का, भगवद गीता का धर्म क्षेत्रे वाला पहला श्लोक बोलो ठीक से, ऊंचा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तो इस प्रकार से भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, हाँ अभी यमुना जी की स्तुति कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो एक श्रुति इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे श्लोक हैं। और श्लोकों को गाना भी ऐसा नहीं कि इनको ओ अच्छा इनको तो लगता होगा सोटा इसलिए सब याद करें, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। हाँ बलराम, अच्छा लगता है ना? यमुना जी की स्तुति होती है तो अभी चैतन्य महाप्रभु उनकी स्तुति कर रहे हैं। चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री प्रवृत्ति क्रियानो वपुर मित्र पुत्री, यानी कि वो सूर्यदेव की पुत्री हैं यमुना देवी, तो उनकी आराधना कर रहे हैं। अभी हमने चैतन्य चरितामृत में वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अच्छा लगता है। और कुछ भी ये सब श्लोक आप गाएंगे, ये पिक्चर के सॉन्ग और जो बाकी सब हम इतने भजन वो सब इतने सुरीले, इतने बढ़िया हैं। हर दिन हम वैष्णव भजन करते हैं एक से एक, और छंदबद्ध तरीके से भी बताना, क्योंकि अनुष्टुप छंद जिसमें भगवद गीता के मैक्सिमम श्लोक्स हैं वो अनुष्टुप में है। अनुष्टुप एक अलग छंद है। और जो एक और छंद है वो मतलब अलग अलग है। जगती अलग होता है, अनुष्टुप ऐसा, वसंत तिलक अलग अलग छंद है, तो उसको गाने का तरीका भी अलग है, इसलिए वो याद कर पाते थे। और हम ये देख रहे हैं कि हमें अब समझ में आ रहा है कि क्यों हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पूरे उसको कंठस्थ कर लेते थे, क्योंकि वो बहुत सोनरस है वो। हाँ कोई सभी श्लोक, वैसे भागवतम के पुराने जो है ना, या कल ही कोई श्लोक ये बोल रहा था, आज प्रवचन में बोल रहे थे, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। तो कर्ण पीयूष विप्रुट, एक जो कर्ण के छेद में एक बार जो भगवान की लीला एक बूंद भी चली गई तो उसका क्या प्रभाव होता है। हाँ हम कई बार सोचते हैं भक्ति वक्ति करके पता नहीं ना भूखे मरेंगे सब। ये सब कोई जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, माता पिता रेडी भी होते हैं थोड़ा गुरुकुल में जाने के लिए, तो पीछे से दादाजी बोले ओ भूखे मारेंगे, बाबा जी बनाएंगे अपने टाइप के, हाँ मरोगे भूखे। हाँ लेकिन चाणक्य, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं चाणक्य को, इसलिए चाणक्य की बात कर रहा हूँ। बहुत नीति का ज्ञान देते हैं, कॉमन विजडम चाणक्य में बहुत है। तो चाणक्य बोलते हैं कि का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। क्या चिंता है मुझे जीवन में अगर मैं हरि जो विश्वम्भर हैं, जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। का चिंता मम जीवने। अगर ऐसा नहीं होता तो एक छोटे से बालक को जैसे ही जन्म होता है उसी समय उसके खाने की व्यवस्था भगवान कर देते हैं, भोजन की व्यवस्था। हाँ तो वो बोलते हैं कि तो जननी जो है, माता है, माता को दूध कहाँ से आ जाता है? उससे पहले नहीं, उसके बाद, उसके एकदम बाद तुरंत व्यवस्था करते हैं। तो इस बात पर जब चाणक्य बोलते हैं कि मैं चिंता करता हूँ, तो मैं यदुपति लक्ष्मीपति की आराधना में मेरा पूरा काल लगता है ऐसे निकल जाएगा। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते।
नो चेत जीवनक जननी स्तन नो चेत जीवन नो चेत अर्भकार्थ जननी स्तन्यम कुतः निस्सरेत् इत्यालोचम मुहुर्मुहुर यदुपते लक्ष्मीपते मम चिंतनेन मया काल नीयते। मेरा काल इसी प्रकार से जा रहा है। ठीक है, भटक गए हम थोड़ा, तो वापस इस दिनचर्या पे आ रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आप देखिए बस इस दिनचर्या को, हरि नाम है, श्लोक पारायण है, गुरु पूजा होती है, फिर हम खेती कराने के लिए ले जाते हैं 1 घंटा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को हम बैल चलवाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े कब मूली लगाएंगे, गाजर लगाएंगे। भूमि देवी हमारी माता है, 7 प्रकार की माता है, उसमें भूमि देवी माता है, गुरु की पत्नी माता है, राजा की पत्नी माता है, स्वयं की माता माता है, धात्री और नर्सिंग मदर जैसे यशोदा माई थी वो माता है, और राजा की पत्नी माता है, गौ माता है। तो गौ माता की सेवा करते हैं, भूमि माता की सेवा करते हैं। तो इन माताओं की सेवा करने से फिर हम अपने परम पिता, क्योंकि कौन है, रंगनाथ के बगल में, नारायण के बगल में भूदेवी और श्री देवी रहती हैं, है ना, तो हम इनकी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना। तो ऐसा हर दिन 1 घंटे जब वो एक्सरसाइज करते हैं, विटामिन डी भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। देखिए हम कर वही रहे हैं जो पुराना है। अर्जुन ने पूछा भगवान तो करूं क्या, भगवान बोले कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। वो करो अर्जुन जो पहले किया जाता था, नया कुछ मत करो। वैदिक सिस्टम में मॉडर्न एक बकवास शब्द है, नॉन वैदिक। मॉडर्न का मतलब आजकल जैसे वो लिखते हैं, कहीं भी जाएंगे तो शायद डीमार्ट में गया था कुछ लाने के लिए, तो ब्रेड पे भी लिखा रहता है या कुछ किसी वस्तु पे मॉडर्न, क्योंकि एक मॉडर्न है मतलब अच्छा भाई। वैदिक सिस्टम में मॉडर्न मतलब घटिया, त्याज्य, अंत्योदय, वर्णाश्रम समाज के बाहर की वस्तु को मॉडर्न बोलते हैं। कोई भी, वो पहनने में हो, ओढ़ने में हो, जो भी मॉडर्न है वो घटिया है, प्लास्टिक है मॉडर्न। देखिए सारे गटरों को जाम कर दिया ना। हाँ, पहले लोग घर में खाते थे और बाहर जाते थे, हाइजीन बना रहता था। हमने भी ऐसा प्रयत्न किया है गुरुकुल में, बच्चों को बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब बाहर जाते हैं एकदम हाइजीनिक रहता है वो। और अब लोग बाहर खाते हैं और अंदर जाते हैं और सारी बीमारियों को लाते हैं। हाँ ठीक है, एनीवेज, तो ये पूरा राउंड द क्लॉक ऐसे, कब खाने का समय भी फिक्स है, 9 बजे प्रसाद लेते हैं, फिर कक्षा होती है, जब प्रसाद भी लेते हैं दिन के प्रसाद और रात के सब प्रसाद के समय। रात के प्रसाद के समय क्या सुनते हो? जोर से नहीं बोलते हो? इधर आओ, खड़े हो। नहीं वो उसको दे दीजिए। नहीं वो अभी आया। क्या जब प्रसाद लेते हैं तो वो लोग कौन सा ग्रंथ सुनते हैं दिन के प्रसाद के समय? अरे उसको लगाना पड़ता है बोलने के लिए, रामायण। तो वाल्मीकि जी लिखे हैं रामायण कि व्यासदेव? हाँ अनंत, कौन लिखा है रामायण? हाँ तो उसमें बोलो ना, वाल्मीकि जी। ठीक है, तो वाल्मीकि जी की वंदना कर दो। पहला जो श्लोक है वो क्या है? हाँ, कूजंतम उसको हिलाना नहीं रहता है। ठीक है, कूजंतम राम रामेति। वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं रामायण के पहले ही अध्याय में। जैसे वो लाल वाली रामायण खोलेंगे ना तो उसमें सारे श्लोक दिए हुए, तो बहुत बढ़िया। अभी रामनवमी भी गई थी, तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। ये जो राम राम इति यानी राम राम, ये जो नाम है ये मधुर है, इसके अक्षर मधुर है, इसलिए सबको बोलना चाहिए। बोलिए राम राम, जय श्री राम। कोई भी ग्रंथ होता है उसके आरंभ में ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, महात्म्य, उसकी स्तुति करते हैं, अर्थवाद करते हैं। तो रामायण में बोलते हैं कि अगर आप एक बार रामायण भी बोल देंगे तो उससे करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। रामायण बोलिए, रामायण। तो वाल्मीकि जी के बारे में वंदना करते हैं कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य
कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कि वाल्मीकि जी को बोल रहे हैं कोयल है जो कविता, क्योंकि रामायण को महाकाव्य भी कहा गया है। तो ठीक है, तो इसलिए कोकिल है, कोयल जैसे कविता कूज रहे हैं। और क्या कूजते हैं? राम राम बोल रहे हैं, राम राम। इसलिए सब लोग पहले राम राम बोलते थे, बच्चों के नाम ऐसे ही रखते थे, राम, माधव, नरसिम्हा। हमारे तरफ है ना, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बना रहे हैं। देखिए जो हमारे वहाँ लेबर भी काम करने आते होंगे, है ना, दामोदर भाई है, गोविंद भाई है, हाँ, नारसिम्हा भाई है। तो ऐसे बहुत सारे तो ये मैंने उनके नाम लिए। हमारे बच्चों के तो एकदम हाँ बार बार बुलाने से, अजामिल की स्टोरी हम जानते हैं। हाँ, अजामिल बुलाता था नारायण नारायण। ये ध्वनि जब कान में पड़ती है तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला अभिन्न है। इसलिए तो बोलते हैं यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। भगवान राम की तो कथा अभी रामनवमी गई थी, तो भगवान राम की तो कथा इतनी सुंदर है कि शरणागति लेने के लिए एक छोटी सी मैं कथा बोल देता हूँ। गुरुकुल की बात करने में कभी कभी राम कथा आ जाती है। हाँ, विश्वामित्र जी की घटना है। रंभा को इंद्रदेव ने भेजा कि रंभा जाओ ये विश्वामित्र के तपस्या को खंडित करो। तो रंभा अप्सरा थी, वो डर गई, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले मेनका गई थी तो उसके ऊपर क्रोध हुए थे। तो बोली चिंता मत करो, मैं हूँ। तो अब वो सोची कि अब इनकी अवहेलना करूँगी तो ये मुझे शाप दे देंगे, तो चलो अब विश्वामित्र जी के पास चली जाती हूँ। तो बोली तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ रहूँगा और कामदेव भी तुम्हारे पास रहेंगे। अब ये विश्वामित्र को जब तपस्या को खंडित करने के लिए गई तो ऊपर इंद्रदेव काली चिड़िया बनकर बैठ गए और बगल में कामदेव भी। जब रंभा ने जब ये कूजे और रंभा ने अपना जो भी वो उनको वो कर रही थी, तो ऐसा जब प्रदर्शन किया तो विश्वामित्र जी एकदम क्रोध भरी आंखों से देखे और उसको पत्थर बना दिया 10,000 वर्ष तक के लिए। और जो उनको शरण दे रहे थे, इंद्रदेव और कामदेव दोनों भाग गए वहाँ से। ये रामायण में घटना है, रामायण की घटना है। मैं हूँ, भागो। विश्वामित्र तो क्या है, लोक की रचना कर देते थे ना। वो तो ब्रह्मत्व जब प्राप्त हुआ तो बहुत घोर ऋषि थे। तो वहाँ पे रामायण में एक वर्णन आता है, एक गोविंदराज भाष्य है, रामानुज संप्रदाय के एक संत हैं। तो वो रामायण बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, तो बहुत आनंद आता है। तो वो बोलते हैं कि शरणागति किसकी लेनी चाहिए, इसके बात पर ये कथा बताते हैं कि वो इंद्रदेव बोल रहे मैं हूँ, भाग गए। और विभीषण सबसे बड़े शत्रु का भाई था, और सुग्रीव बोल रहे हैं, लक्ष्मण भी बोल रहे हैं, बाकी वानर भी बोल रहे हैं। हनुमान जी ने थोड़ा बस बोला था कि सोच सकते हैं, लेकिन विभीषण बोला कि नहीं, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। तो भगवान सबके सलाह करने के बाद बोलते हैं सकृद एव प्रपन्नाय। सकृद यानी एक बार कोई अगर प्रपत्ति लेता है, एक बार कोई अगर शरणागत होता है, सकृद एव प्रपन्नाय तव अस्मि, तवास्मि यानी आपका हूँ, तवास्मि इति च याचते अवय अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। मेरा ये व्रत है, मेरे पास आकर कोई एक बार बोलेगा कि तब अस्मि, मैं आपका हूँ। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो मंत्र बोलना चाहिए और आशय मन में ये रखना चाहिए कि मैं आपका हूँ या माताएं आपकी हूँ। प्रार्थना, स्मरण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं भक्ति के, जो हम करते ही हैं, आप तो करते ही हैं। तो गुरुकुल की दिनचर्या इस प्रकार की है कि खाने का समय है, ऐसा नहीं है कि डब्बा से लिया खोल के खा लिया, आप समझ रहे हैं। तो ये तो बड़ा अत्याचार है। अत्याचार नहीं, देखिए सुबह लेते हैं, कभी कभी बच्चे हैं भूख लगती है उनको, तो गुरु पूजा से पहले भी ले लेते हो, है ना, गुरु पूजा से पहले भी लेते हो। तो गुरु पूजा से पहले कुछ फ्रूट्स है या कुछ स्नैक्स बना रहता है तो वो लेते हैं। 9 बजे लेते हैं, 1 बजे लेते हैं,
और फिर दूध लेते हैं शाम में, और फिर रात में लेते हैं भोजन। तो इतनी बार लेते हैं, पर्याप्त लेते हैं, बीच में नहीं लेते हैं। मन करे या नहीं, ये इसी को निग्रह बोलते हैं। देखिए, मन को जितना कंट्रोल करेंगे उतना मन नियंत्रित होता जाएगा। तो गुरुकुल की मुख्य ट्रेनिंग इस प्रकार से है, जब लंच करते हैं तो रामायण सुनते हैं, जब डिनर करते हैं तो महाभारत सुनते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा, इनको इतनी कथाएं याद हो जाती हैं कि मैं जब भूल जाता हूँ तो उनसे ही पूछता हूँ, अच्छा इसमें क्या था? नहीं प्रभु जी, वो तो ऐसा था। अभी रामायण में बता रहे थे कि नहीं प्रभु जी, वो अकंपन नहीं, प्रहस्त था। बोले अच्छा अच्छा। कि गुरु के सामने तो थोड़ा, गुरु को थोड़ा मूर्ख समझेंगे तो फिर कैसे हम मुझसे सीखेंगे? हाँ, लेकिन बहुत प्लीजिंग एक्सपीरियंस है। तो ये जो गुरुकुल है, इसमें पूरा सुबह से लेकर शंख बजता है। हाँ, सुबह 4:30 बजे डॉट शंख बज जाता है, चरणामृत लेते हैं। हाँ, इतनी बार भगवान के ध्वज को, हर पूर्णिमा में ध्वज परिवर्तन होता है, ध्वज को देखते हैं। और एक और बात, जो पूरा गांव का जो वातावरण है उसमें क्या होता है कि अगर वो भागते भी हैं ना, जैसे यहाँ से वहाँ बस भाग रहे हैं, वो सतौड़ी खेलते हैं, ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें बहुत भागना होता है, लुक्का छिपी और ये सब जो भी इस प्रकार के गेम्स होते हैं, तो खेलते खेलते शक्ति आ जाती है। और फिर सेवा, हर दिन सेवा करनी है, बाल्टियाँ धोनी है और ये करना, धड़ धड़ धड़। आप इनको बाल्टी धोते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे क्या स्पीड है। हाँ, एकदम जल्दी जल्दी राख लगाएंगे और एकदम मैकेनिक रोबोट की जैसा कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक राख घिसेगा, एक धोएगा, एक उसको धोने के बाद उसको सेट करेगा, तीसरा चौथा पहुंचाएगा, कोऑर्डिनेशन है। समाज में जब व्यक्ति कार्य करता है तो भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। हाँ, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में फिर जैसे जब बड़े बच्चे होते हैं तो वो छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं और वो बोलते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तो उससे मैनेजमेंट आता है। तो इस प्रकार का पूरा एक रूटीन रहता है और इनकी श्रद्धा भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। देखिए, निग्रह करना है तो जैसे 3 जोड़ी कपड़े हैं, आज का पहना, आज नया स्वच्छ वस्त्र पहने, अभी धो के रख दिया, सूख रहे हैं, फिर कल सुबह सुबह पहन लेंगे। 3 जोड़ी कपड़े में पूरा साल चलाते हैं, पूरा साल। देखिए, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुर्हितम, सादा जीवन, ब्रह्मचर्य पालन, ऊर्ध्वरेत जब व्यक्ति होता है, जब उसकी सारी इंद्रिय निग्रह रहती है तो मेधा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से धर्म पारायण बनाने का प्रयत्न करते हैं। और भी बहुत सारी वस्तु हैं, शायद समय का अभाव होगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो प्रश्न है उसके लिए भी समय बचे। मुख्य मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप सभी, बहुत सारे ऐसे इच्छुक अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि गुरुकुल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमने ये देखा है, जैसे जय गोविंद प्रभु वगैरह भी समझाते हैं कि किस प्रकार से, ये हमारे गुरुकुल के वहाँ के नंदग्राम के पैट्रन हैं, भक्त तो वरिष्ठ भक्त हैं ही, हमारे मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वो ट्रस्टी भी हैं वहाँ के। तो इन सब के मार्गनिर्देशन में हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि देखो, बच्चों को भेजना भी चाहते हैं अभिभावक, और ये भी चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से वहाँ नहीं भेज पाएंगे क्योंकि हम नहीं आ सकते। तो हमने ये सोचा है कि हम ऐसा करते हैं कि 7 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को आप हमें दीजिए, 5 वर्ष आप गुरुकुल में रखिए। कितने? 5 या 8 से 14, ऐसे कुछ वर्ष तक आप गुरुकुल में दीजिए। 5 वर्ष तक उनको अधर्म से वो बचे रहेंगे, उसकी हम यथासंभव उसकी हम गारंटी ले सकते हैं। देखिए, भक्त नहीं बना सकते हैं क्योंकि भक्ति तो स्वतः है, स्वेच्छा की वस्तु, हम फोर्स करके भक्त, लेकिन भक्ति का यथासंभव अनुकूल वातावरण दे सकते हैं, उनको नियमित कर सकते हैं, वो समय पे खाएंगे। हाँ, करेला भी खाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि करेला मैं नहीं खाता हूँ, वो अनिवार्य है, 1 चम्मच तो लेना ही है करेला भी। तो गुरुकुल में कोई ये नहीं बोलता कि ये सब्जी, भले वो देखें करें, लेकिन लेना तो है, लेना है तो बस लेना है, उसमें ये सब नहीं होता है। इंद्रिय निग्रह होती रहती है, ठीक है, बोला गया करना है। अभी 4:30 बजे हैं, अलार्म लगा हुआ है 2 बजे, क्योंकि 2:15 बजे कक्षा होती है रामायण की और प्रसाद लेते हैं, तो 2:10 में उठना है। आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता है, वो कुछ बात नहीं है, उठना है मतलब उठना है। घंटी बज जाएगी, आपको उठना है, जो नहीं उठेगा उसको पोछा लगाना है, तो तुरंत उठ जाते हैं, भाई उठ जाओ, पोछा कौन लगाए। तो इससे इंद्रिय निग्रह होते रहता है, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डिसाइपल बनते हैं और धीरे धीरे स्वतः हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, और सेकेंड स्टेज ये रहता है कि आचमन से 2-4 बूंद आंखों पे टपका देते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि उठाने जाते हैं तो पहले ही से रेडी, प्रभु जी उठ गया, सब रेडी हो जाता है। तो कुछ दिन के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतना अभ्यास हो जाता है कि कल रात में भी 11 बजे सोए,
बहुत, क्योंकि शहर में इनको इतनी आदत नहीं होती है, लेकिन 11 बजे सोए, ट्रैवल भी किया था तो भी सुबह सुबह उठ गए। मंगल आरती में थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन आ गए थे। तो बच्चों का स्तुति गान नहीं होना चाहिए, गुरु का हमेशा होना चाहिए, मित्र का पीठ के पीछे होना चाहिए, और निंदा तो कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नीति का ज्ञान है। तो हितोपदेश वगैरह पढ़ाते हैं, उनको भी कहानियाँ सुनाते हैं जब हितोपदेश से, तो उसमें ऐसे नीति के ज्ञान भी आते हैं। तो ऐसा भी अगर कोई सोचता है, पता नहीं, मान लीजिए किसी का बिजनेस है, आप ये मान के रखिए अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो वो बिजनेस तो ऐसे सीख जाएगा पिताजी से। और क्यों नहीं सीखेगा, उसको समझ में आ रहा है, इतने बच्चों से हर दिन दिन रात वो डील कर रहा है, वो देख रहा है, सब समझते हैं। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बहुत, पूरा गांव है ना, हमारा गुरुकुल केवल गुरुकुल नहीं है, पूरे गांव में गुरुकुल है। अलग अलग लोग आते हैं, फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में उनको मैनेज करना है। उनको पता है अच्छा ये प्रभु जी थोड़े नर्म हैं, ये प्रभु जी थोड़े कड़क हैं, ये प्रभु जी थोड़ा फिलोसफिकल है, ये थोड़े कथा वाले हैं। उनको सब पता है किधर किसकी चाबी है। हाँ, तो वो अलग अलग जगह सब चलाते हैं, तो सब बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो हमने क्या सोचा है कि आप कम से कम, ये हम बेस्ट जो कर सकते थे वही है। हम मॉडर्न एजुकेशन तो नहीं देते हैं, अपने बच्चों को नहीं देते हैं, तो लेकिन फिर भी गुरु महाराज की भी ऐसी इच्छा है कि हम अपने गुरुकुल को, जो अभी तक थोड़ा सा क्लोज करके रखा था कि केवल बाहर के बच्चों को बिल्कुल नहीं लेंगे, तो अभी हम उसको खोल रहे हैं और पुनः उसको सोच रहे हैं कि 5 वर्ष तक आप कम से कम एक कमिटमेंट रखिए कि जब तक वो 7th या 8th क्लास तक रहता है, कम से कम उतना ही, पूरा जीवन दे तो अति उत्तम, वो बेस्ट है उसके लिए। कम से कम 5 वर्ष तक आप बच्चों को वहाँ पढ़ाइए। हम समझते हैं आप माता पिता हैं, बच्चे आपका पूरा संसार ही हैं, उनसे पृथक होना, उनसे अलग होना, उस वो विरह है, उसमें बहुत कठिन है वो कार्य। लेकिन माताओं से विशेष अनुग्रह है, उनसे विनती है कि ये बात को समझिए, जिस बच्चे को आप इतना आंचल में छुपाए हुए हैं, वो एक दिन, शायद कठिन है बोलना, लेकिन वो शायद आपको भी घर में रख नहीं पाएगा अगर धर्म पे उसको स्थित नहीं किया। तो ये वास्तविकता दिख रही है समाज में, यही होने वाला है। तो कम से कम 7 से 10 वर्ष के लिए हम सत्र खोल रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे बच्चे कम से कम 14 वर्ष तक, 13 वर्ष तक, फिर हम उनका पूरा उपसंहार संस्कार कर देंगे, स्नातक उनको बनाकर फिर आपको सौंप देंगे। फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? हम गणित उसको अच्छे से सिखाते हैं। गणित मैंने बताया आपको, शायद इतना विश्वास तो है कि हमारे अंदर थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है, पढ़ा लेंगे गणित। और साइंस नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी, बिग बैंग नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी अवैदिक चीज़ नहीं पढ़ा पाएंगे, नॉन वैदिक नहीं पढ़ा पाएंगे। भाषा का ज्ञान अच्छा देंगे। संस्कृत में बातें करते हैं, कैन यू बीट इट? संस्कृत में हम संभाषण करते हैं। वहाँ बच्चों को 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए केवल क्या बोलना है? संस्कृत में ही बोलना है। संस्कृतेन एव वक्तव्यम, उसमें ही बोलना है। 3 महीने तक केवल संस्कृत चलती है, कुछ नहीं, कुछ और नहीं। बच्चे बंगाली भी सीख जाते हैं, गुजराती भी सीख जाते हैं, हिंदी भी सीख जाते हैं, और अंग्रेजी भी हम पढ़ाते हैं। अच्छा खासा ग्रामर का वो सारा परफेक्ट पास्ट, हैज़ बिन, हैड बिन, इज़, वॉज सब सिखाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज भी, ज्योग्राफी का भी ज्ञान देते हैं। स्कूल का कोई उस प्रकार से पालन नहीं करते। बहुत सारा महाभारत, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता लगभग पूरी, अब पूरी मतलब बहुत फिलोसफिकल है तो वो भाग छोड़ते हैं, लेकिन इनको पूछेंगे आप कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे श्लोकों के साथ। तो लेकिन अभी अगर कोई एकदम क्षेत्रज्ञ है तो उस प्रकार से 10 वर्ष के बच्चों को 9 वर्ष के हैं ये सब, 8.5, 9 छोटे वाले, वो बड़ा वाला जो है वो बड़ा है। तो इतना हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इतना हम कर सकते हैं। फिर आप इसके ऊपर विचार कीजिए, और हमारी प्रवेश की प्रक्रिया भी है, पूरा रोड मैप है। आप हमसे संपर्क करें, ये हमारा नंबर है 7202953213, और एक गुरुकुल का भी नंबर है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। गुरुकुल का अलग से नंबर है, शायद इसमें डाल नहीं पाए हम, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ भी कॉल करेंगे तो आपको गुरुकुल का नंबर मिल जाएगा। हम पिछले वर्ष से विंटर कैंप और समर कैंप दोनों आरंभ किए हैं। बच्चों को पता तो चले, मूली नीचे होती है, ऊपर नहीं, हाँ, ज़मीन के नीचे। एक बच्चे ने बोला, छी इतनी गंदी मूली, हाँ,
तो मिट्टी मिट्टी लगेगी तो थोड़ी गंदी तो रहेगी। उसने भी सोचता है कि भाई माँ तो मेरी बहुत चमकीली मूली लाती है। हाँ, तो ये पूरा पैकेजिंग का ज़माना है, हर चीज़ पैकेट में एकदम बढ़िया बढ़िया पैकेज में, अंदर चाहे मल भी हो तो भी बाहर चमकीला पैकेट है और उसमें लिखा है विमल, है? और उसको शाहरुख खान बेच रहा है। बताइए, तो पैकेजिंग का ज़माना है, हम थोड़े पैकेजिंग में पुअर हैं, क्योंकि वैदिक सिस्टम पैकेजिंग करती नहीं है। वैदिक सिस्टम में, वैदिक प्रणाली में देखिए नाली खुली होती है, तो कोई सोचेगा दिखती है नाली, लेकिन उसको साफ करना सरल होता है। ठीक है, तो उसमें स्वच्छता ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विराम लेंगे कुछ प्रश्न उत्तरी के लिए। नवनंदग्राम गुरुकुल का एक ये पोस्टर है जो आपने शायद देखा भी होगा, 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए। हम अभिभावकों से, मैं इधर ही हूँ, आप कुछ भी अगर आप बोलेंगे, कुछ आज्ञा है तो आप बताइए, कुछ आपके सजेशंस है तो वो बताइए। 5 साल के लिए कम से कम बच्चों को देने के बारे में दृढ़ता से घर में जाइए, आपस में पति पत्नी मिलके, बड़ा डिसीजन है, सोचिए समझिए, नंदग्राम आइए, नंदग्राम आइए और आकर कुछ समय रुकिए। ऐसे कैंप्स में भेज सकते हैं बच्चों को, हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, 3 से 10 में एक कैंप हम कर रहे हैं। बच्चों को बैलगाड़ी से संकीर्तन पास के गांव में ले जाना, श्लोक पारायण, नक्षत्र का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत उसमें करके पाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते, हम बांसुरी भी बजाते हैं, मृदंग, करताल सब सीख जाते हैं। छोटे बच्चे आप देख ही रहे हैं, बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर विराम लेंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप कृपया बता सकते हैं। એટલે પ્રસાદ વખતે જેને પ્રશ્ન હોય તે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી શકે ઠીક, છે। ઠીક. બાર સ્ટેટ કરુંગી તો તમે એને સાથે પર્સનલ વાતચીત કરી શકો છો। જેને કોઈને પ્રશ્ન કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે, ડાઉટ છે, એની સાથે ક્લિયર કરી શકો છો। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं? છોકરાઓ પાસે આપણે શ્લોક પારાયણ કરાવવાનું હતું, करने वाले थे लड़के, लेकिन अभी समय